Hello, friends. I am Shalabh Jain. As you know, our series of the book Flamingos chapter is going on, and in that series, this is the last chapter interview. Christopher Sylvester has written this story, and right now we are completing his first part. As you know, interview, which was invented 130 years ago, and today in the field of journalism, it has become a commonplace. आज आप घर पे भी किसी सर्वेंट को रखते हैं, इफ़ यू वांट टू कीप एनीबडी एट योर जॉब, तो आप उसका इंटरव्यू लेते हैं। घर में आप किसी को अपना घर किसी को रेंट पर देना चाहते हैं, तो आप उसका इंटरव्यू लेते हैं जो टेनेंट है। इंटरव्यू इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टुडे इट हैज़ बिकम ए बैकबोन ऑफ इवन नॉर्मल लाइफ। Almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their life. Everybody knows this term interview. What is interview? When you want to know about other person, that is simply interview. और ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ. Several thousand celebrities have been interviewed over the years. It means since its invention, which I have mentioned you recently, over 130 years, it has taken its root till deep, and today the big guns, the celebrities, the successful people are interviewed, and their interviews are published in the magazines, on the YouTube channels, so that people could come to know the success story of their life. But really, the celebrities, the politicians, the big guns, the successful people love to face interview. In this story, we will read the same point. As you know very well, opinion of the people regarding interview vary. Vary means full of variation. Different people have different views about the interview. एवरी कॉइन हैज़ ए फ्लिप साइड। कुछ लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं और कुछ लोग इसको कहते हैं अननेसेसरी क्लेम है ये। मीन्स अकॉर्डिंग टू सम पीपल इंटरव्यू इज गुड, बट अकॉर्डिंग टू सम पीपल इट इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम। मीन्स कुछ लोगों ने इसको हाइप किया हुआ है। दे मीन्स इंटरव्यूज आर नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअली why interview was invented? It was considered a source of truth, and in its practice an art. Obviously, taking interview is an art. Only then you will be able to bring out the truth about the person. अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो पर्पस क्या है? उसकी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी लाइफ के अंदर जो भी अचीवमेंट्स हुए, प्लस हुए, माइनस हुए, उसके अंदर पीप आउट करना, झांकना। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट बी क्रिएटिव व्हेन यू टेक एन इंटरव्यू। इफ यू आर नॉट क्रिएटिव, यू वॉन्ट बी एबल टू टेक द इंटरव्यू। लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं, दे फील themselves its victims. The celebrities do not prefer to face interview because they feel it might harm them, and that's why they despise means hate, dislike, disregard. उनका मानना यह है कि इंटरव्यू इज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। अनवारंटेड मीन्स अनवांटेड, इंट्रूजन मीन्स इंटरप्शन, इंट्रूजन मीन्स एनक्रोचमेंट। किसी के लाइफ में, घर में, पर्सनल स्पेस में ज़बरदस्ती घुसना, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रूजन। और उनको लगता है कि इट इज़ डिमिनिशिंग देयर वैल्यू, देयर रेपुटेशन। डिमिनिश मीन्स डिक्लाइन, डिमिनिश मीन्स रिड्यूस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा कि व्हाट वर द व्यूज ऑफ प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव पीपल अबाउट इंटरव्यू और फोटोग्राफ। Primitive culture, primitive people means the people who belong to extremely ancient time, the people who lived in the Stone Age. So primitive culture believed
If one takes a photographic portrait of someone, then one is stealing that person's soul. In primitive in primitive age, if any of the persons was clicked photograph, अगर आप किसी प्रिमिटिव पर्सन की फोटोग्राफ ले रहे हैं तो वो दे डू नॉट फील कंफर्टेबल, दे फेल्ट कि उनकी किसी ने सोल निकाल ली। उनको क्या लगता था, किसी ने उनकी आत्मा निकाल ली, फोटोग्राफ क्लिक कर ली। तो इट वॉज देयर थॉट। बस यही थॉट आज सेलिब्रिटीज की है कि इफ समवन इज टेकिंग देयर इंटरव्यू, तो वो उनका उनका इंटरव्यू नहीं ले रहा है, वो उनकी पर्सनैलिटी डिमिनिश कर रहा है। बिकॉज व्हेन योर इंटरव्यू इज पब्लिश्ड, योर वर्ड, ए सिंगल वर्ड कैन मेक और मार द सिचुएशन। आपका एक छोटा सा वर्ड, बिकॉज यू आर सेलिब्रिटी, पीपल वांट टू लिसन यू, आपका एक छोटा सा अच्छा या बैड वर्ड सिचुएशन को अच्छा या बुरा भी कर सकता है। दैट्स वाई दे प्रेफर टू अवॉइड फेसिंग इंटरव्यू। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में जो अगला पॉइंट है, कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम है, राइटर्स हैं, प्ले राइट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके व्यूज़ आए हैं इंटरव्यू के बारे में जो आपको याद करने होंगे। जैसे पहला है वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल, ही वॉज ए राइटर एंड वो क्या फील करते हैं, पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। इट वॉज व्यू ऑफ P.S. नायपॉल की व्हेन पीपल आर फेस्ड इंटरव्यू दे फील वुंडेड, इंजर्ड एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ। कि लोगों की बॉडी में इंजरीज हो जाती हैं, इट मीन्स दे सफ़र मेंटली, दे सफ़र इमोशनली, और उसके बाद वहाँ से वो निकल नहीं पाते हैं उस नेगेटिविटी से। इसी तरह से लेविस कैरल, आपने एक बुक पढ़ी होगी एलिस इन वंडरलैंड। मैनी ईयर्स बैक देयर वाज ए सीरीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ कोर्स अबाउट द सेम। लेविस कैरल वाज द राइटर एंड ही वाज क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। तो व्हेन ही वाज आस्क्ड हिज व्यूज कि सर आप क्या मानते हैं इंटरव्यू के बारे में, डू यू लव टू फेस इंटरव्यू, तो उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं कि ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, कि सर मैंने कभी इंटरव्यू के लिए हाँ की ही नहीं। आई नेवर लाइक्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरव्यू इज हॉरिबल। ही फेल्ट हॉरिफाइड जस्ट बाय द नेम ऑफ इंटरव्यू। उनका कहना यह था कि आई वुड लव टू गिव माई सक्सेस स्टोरी टू ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल rather than a battalion of the audience। तो क्या कह रहे थे वो, to be interviewed, it was his horror of being lionized which made him thus repel would be acquaintances। horror of being lionized का मतलब to be very much popular, to come into limelight, उनको डर लगता है। that's why he always tried to avoid autograph seekers and photograph seekers। वो कहते हैं कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को बता दूंगा साइलेंस में, लेकिन मुझे भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, मुझे शोर शराबा नहीं चाहिए। इन द सेम मैनर आपके एग्जाम में एक पॉइंट आ सकता है अबाउट रूडयार्ड किपलिंग। व्हाट वर व्यूज ऑफ रूडयार्ड किपलिंग अबाउट इंटरव्यू। तो वो कहते हैं इवन Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude। Condemnatory means very much derogatory, very much negative। His wife Caroline writes in her diary की बात है 14 अक्टूबर 1892 की, कि when they were in Boston but two writers or reporters spoiled their day because they wanted to take their interview but we refused। According to Rudyard Kipling, interview is immoral। Immoral means unethical। He even gave it synonym of crime। He called it an offense against my person। Means according to Rudyard Kipling, if somebody is taking your interview, that means the person is attacking on your personality and he is a criminal। Now ironically, listen very carefully, now ironically he himself had taken interview of Mark Twain few years before
इट मीन्स जो पर्सन खुद इंटरव्यू ले चुका है किसी का, वो इंटरव्यू के बारे में क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रूडयार्ड किपलिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रूडयार्ड किपलिंग, कि इंटरव्यू इज इमोरल, इट इज ए क्राइम, इट इज एन ऑफेंस एंड इट इज एन कावर्डली एक्ट। जबकि खुद उन्होंने इंटरव्यू लिया किसका? मार्क ट्वेन का, कुछ साल पहले। तो दैट इज एन आयरोनिकल सिचुएशन। H.G. Wells, Herbert George Wells, in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal. Ordeal का मतलब होता है complication और difficult journey। तो H.G. Wells क्या कहते हैं? Was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. H.G. Wells was also negative about interview, but हाँ, उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। That is also very ironical situation. It means on one side you are criticizing interviews, but on the other side you yourself are doing the same thing. That is an ironical situation. एग्जाम में आपके जरूर आएगा सॉल बेलो के क्या व्यूज थे इंटरव्यू के बारे में। Who has consented to be interviewed on several occasions, वो क्या कहते हैं? Whenever I face interview, it seems, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम बींग चॉक्ड, मेरे विंड पाइप के ऊपर किसी ने थम रखा हुआ है, अंगूठा रखा हुआ है। आई फील थंबप्रिंट ऑन माई विंड पाइप। तो ये ड्रॉबैक्स कुछ राइटर्स ने, कुछ सेलिब्रिटीज़ ने इंटरव्यू के बारे में अपने मेंशन किए। बट यू नो वेरी वेल एवरी कॉइन हैज़ ए फ्लिप साइड। ऑफ कोर्स these people did not like interview and considered interview is full of drawback, but despite the drawbacks interview is supremely serviceable medium of communication। क्या आज की इंडस्ट्री में बिना इंटरव्यू के हम चल सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, पेरेंट्स आर इंटरव्यूड, क्यों? So that the school management could come to know from which community, from which class a student is coming to our school. In the same manner, when you go for a job, you are interviewed। आपने देखा भी होगा बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और सारे हर्डल्स पार कर लेते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। रीज़न, they do not have ability to face the board of interview, and if you are able to satisfy the interviewers you will get the job or whatever you are aspiring। तो इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं। these days more than any other time our most vivid means clear impressions of our contemporaries are through interviews। means in today's world the common people are getting information about the successful people only through interview। ये आपके एग्जाम में नाम आएगा डेनिस ब्रायन। उन्होंने क्या लिखा? ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर। इफ लाइव इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, so you means we audience, we common people get each and every detail about person's life, about person's achievement, about person's venture। so when one person throws question, other person gives answer। so because of this interviewer holds a position of unprecedented power and influence। of course a person who is taking interview, he has unprecedented means सुप्रीम पावर एंड इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो कौन सा क्वेश्चन थ्रो कर दे यू डू नॉट नो। और शायद इसीलिए बहुत से लोग डरते हैं इंटरव्यू फेस करने से, बिकॉज बिफोर द ऑडियंस, बिफोर द गैमट ऑफ पीपल, इफ एनी सच क्वेश्चन इज आस्क्ड विच आंसर दे डू नॉट वांट टू गिव और दे शुड नॉट गिव, और उनको देना पड़ा, तो इट माइट हैम्पर देयर रेपुटेशन, देयर इमेज। So this was your first part of the chapter interview, and now we will start the second part also।
just within few minutes. Okay, friends, koi chuck. So see you in the next part of the same chapter, interview. Bye bye.